Hello guys, welcome back and this is another playlist of our DSA masterclass. This is playlist number 4 or actually the fourth main content. Right, so सबसे पहले हमने देखा है कि mastering the software DSA interviews. So this was about like how we can answer a DSA question in an interview. Post that we saw about ARIS 101 जिसमें हमने ARIS कुछ basic questions, कुछ medium questions लेवल के डिस्कस किए थे. इससे आपको लीड कोड का एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इफ़ यू हैवंट डन लीड कोड एनी टाइम बिफोर तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. देन वी डिस्कस्ड अबाउट लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट वाली प्ले लिस्ट में हमने सारे के सारे लिंक लिस्ट के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन, वी सॉल्व अराउंड 16 इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट. मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के, इन ईजी लेवल के, इंक्लूडिंग सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड द सर्कुलर लिंक लिस्ट, राइट. So this playlist is about array and string. So again, मैं कुछ questions array के solve करूँगा. We didn't discuss much about 2D arrays or some of the questions in the single one-dimensional arrays as well. And then we'll talk about a few questions in strings as well. So this playlist is about that. Again, to recap what an array is basically it stores a collection of elements sequentially. This we all know. And elements can be accessed randomly in an array using an index, and it takes about constant time to access a random element in an array, right? So this is your array. Now what is a 1D array, right? So 1D array has a fixed capacity. If you assign some length to it, initialize with some length to it, so what will happen is that it will allocate that amount of memory for those elements, and it will stay fixed, right? You cannot extend the length of the array in that case because it is fixed sized in nature. You can track basically if there, let's say you have created an array initially with 10 capacity, then what can happen is that initially none of the elements are filled in it. So once you start filling it, you can basically keep track of it via a variable called as a size, right? तो basically आपने अगर फर्स्ट इंडेक्स में कोई वैल्यू को भर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, एक साइज वेरिएबल ट्रैक कर सकते हो, साइज को 1 कर सकते हो. सो इट विल काइंड ऑफ ट्रैक द लेंथ ऑफ द array that is valuable to you right now, sort of that, right? For example, this is an example of a 1D array. So if our array looks like this, initially the capacity was 5, and initially all the elements will be, let's say, initialized to 0 or -1. So even though capacity is 5, initially the size will be 0. The moment you fill the first element, then the size becomes 1. In this case, I have filled the 4 elements, so size becomes 4, right? So this is about the static array that you've discussed. Now let's talk about the dynamic array in place, right? So what is a dynamic array? Dynamic array is basically quite similar to array, which is the where we can access the elements randomly. In dynamic array also we can do that. It's just that it has a variable side. Under the hood, the dynamic array still implements the static array, but whenever it sees that okay, the number of elements the previous array cannot accommodate it, so what it does, it creates a new array of twice the size of the previous array at the hood and starts filling those elements also, right? So for example, dynamic array कैसा होता है, जावा में इसको array list भी कहते हैं. बेसिकली एज आई सेड, इट इम्प्लीमेंट्स अ फिक्स साइज array behind the scenes. सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैंने एक इनिशियल लिस्ट बनाई थी, दिस इज हाउ वी डू इट इन जावा. सो इनिशियली अगर 0 साइज की थी तो कुछ ऐसा होगा, राइट? तो अंडर द हुड इट्स बेसिकली एन array ओनली, ठीक है? कुछ कांस्टेंट साइज का एक array बन जाता है. जैसे आप इसमें मान लीजिए कोई एलिमेंट भरते हैं लिस्ट में 5, एंड वी डू इट बाय सम सिंटैक्स लिस्ट डॉट ऐड एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? जैसे आप इसमें 5 भरोगे तो इनिशियली साइज 0 था, तो ये क्या करेगा, एक नया एरे बनाएगा साइज 1 का, और उसमें ये 5 भर देगा अंडर द हुड, राइट? एंड देन इफ यू अगेन ऐड 6 टू दिस लिस्ट, तो व्हाट विल हैपन कि इसमें 6 ऐड होगा, बट अंडर द हुड व्हाट हैपेंस इज कि इट सीज के दिस एरे इज ऑलरेडी फुल्ली फिट. सो ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल द साइज का एक एरे बनाएगा, फिर 6 इसमें कॉपी करेगा, 5 इसमें कॉपी करेगा, और फिर देखेगा कि अब 6 यहाँ पे लिस्ट में आया था, तो ये क्या करेगा, 6 डाल देगा यहाँ पे. And similarly, if you add a 7 here in the list, so what will happen कि ये देखेगा कि ये array पूरा fulfilled हो गया है, तो ये डबल साइज का एक array बनाएगा, तो 5 6 डबल साइज का array बनाएगा, तो इनिशियली 0 0 0 रहेगी. फिर क्या होता है, चेक करता है कि 5 और 6 था, तो ये कॉपी कर देता है इसको 5 और 6 को यहाँ पे. फिर देखता है कि नया एलिमेंट 7 आया था, तो यहाँ पे 7 डाल देता है, फिर 0 रहता है. फिर अगर आप यहाँ पे 8 ऐड करोगे तो होगा क्या कि ये देखेगा कि न्यू array में यहाँ पे भी 8 भर देगा. अगर इसमें साइज रहती है तो भर देगा, और अगर नहीं होती है तो एक डबल साइज का एरे क्रिएट करता है, उसमें पहले सारे पुराने वाले एरे को कॉपी करता है, और नया एलिमेंट फिर देखता है कि नया एलिमेंट फिर उसके एंड में प्रिपेंड कर देता है, राइट? अपेंड कर देता है. सो दिस हाउ डायनामिक एरेस वर्क. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, एक्सेसिंग अ रैंडम एलिमेंट इज स्टिल कॉन्स्टेंट, and doing this operation, basically appending an element at the end in a list,
is amortized big O of 1 only, right? So we will not discuss the time complexity exactly here, but in subsequent videos we will definitely discuss कि dynamic array में कोई element को append करने पे हमारी time complexity constant क्यों रहती है. Okay guys, so this is it for the basic theory and I don't want to waste much time in the theory क्योंकि हमें questions ज़्यादा important है वो करने के लिए. So let's discuss our first question, right? So first question है ये हमारे array n string playlist का. This is problem number 724 on lead code. This is called the find pivot index. एंड ये उसका URL है लीड कोड पे. तो जैसे ही आप ये थ्योरी को कंप्लीट करो तो डेफिनेटली ट्राई करना कि एक बार थ्योरी को आप खुद से अपने आप एक पेपर पे पेन पेपर पे ट्राई करें कि आपसे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, सारे नंबर सही से फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डिफरेंट इनपुट पे आपका सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आप जाके इसको ट्राई करना कि आप इसे कोड करो. ठीक है, एनीवेज लेट्स स्टार्ट एंड नाउ विल डिस्कस कि क्वेश्चन अपने से क्या पूछता है. क्वेश्चन अपने से ये पूछ रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स कैलकुलेट द पिवट इंडेक्स ऑफ दिस एरे. The pivot index is basically the index where the sum of all the numbers strictly to the left of the index is equal to the sum of all the numbers strictly to the index right. So question is quite straightforward. So basically if the index on the left side of the array, if the index is on the left side of the array, then then the left sum is 0 because there are no elements to the left. This is quite straightforward. Then it says this also applies to the right edge of the array. Return the leftmost pivot index and if no such index exists, return minus 1. ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो लेट्स गो थ्रू अ फ्यू एग्जांपल्स एंड सी कि हमारा आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को दिया रखा है 1 7 3 6 5 and 6, राइट. इफ दिस वाज माय पिवट इंडेक्स ना, तो होता क्या कि यहाँ पे मेरा लेफ्ट सम क्या हो जाता, 0 हो जाता और राइट सम बेसिकली मेरा ये होता. अगर यहाँ पे अगर मेरा पिवट इंडेक्स ये होता, राइट, अगर मेरा पिवट इंडेक्स ये होता 1, तो ये मेरा लेफ्ट सम हो जाता और ये मेरा राइट सम हो जाता. Same for same for if we do take this, then my left sum becomes this 1 and 7 8, and my right sum becomes this 6 5 11 6 and 17, right. And if my pivot index is this which is 3, तो मेरा left sum ये हो जाता which is 1 7 8 3 11, और इसके right में जो elements है this will be right sum and this 11. तो बेसिकली आप देख सकते हो कि इस केस में it is at index 3 that the left sum is equal to the right sum. Strictly left to this index and strictly right to this index, उन दोनों का सम अगर बराबर है तो that is our pivot index and we have to return the first one from the left side. Okay, and for this example 1 2 and 3, अगर इसको ले ले 1 2 and 3 को, तो इसमें आप देखोगे कि there is no pivot index. जब हम 0 लेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट सम हमारे पास 0 होगा, राइट सम हमारे पास 5 होगा. जब हम 1 लेंगे तो लेफ्ट सम हमारे पास 1 होगा और राइट सम हमारे पास 3 होगा. जब हम इसको लेंगे तो राइट सम हमारे पास 0 होगा और लेफ्ट सम हमारे पास 3 होगा, right. At no point it matches, so this is basically इस पे कोई हमारे पास पिवट इंडेक्स है नहीं तो हम इस पे क्या -1 रिटर्न कर देंगे. लेट्स गो थ्रू आवर लास्ट एग्जांपल. दिस इज 2 1 and -1, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 1 और -1. तो अगर इसमें हम देखिए इसको पिवट इंडेक्स ले तो लेफ्ट सम मेरा 0 हो जाएगा, लेफ्ट सम मेरा 0 हो जाएगा और राइट सम भी मेरा 0 हो जाएगा, राइट. तो एट द फर्स्ट ओनली वी फाउंड इट, तो हमारा पिवट इंडेक्स बेसिकली इज 0. So this is about the question. Now let's understand the constants. Nums की लेंथ बेसिकली 10,000 के बीच हो सकती है और nums of i का वैल्यू बेसिकली नेगेटिव भी हो सकता है, तो -1000 और 1000 के बीच में होगा. Anyways, let's discuss companies. तो Meta, Coupang, Radius, Microsoft, Nvidia, etc. काफ़ी कंपनीज ने क्वेश्चन पूछा है. अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, that's why we are doing it also. चलो अब इसको सोचते हैं कि इसको कैसे करेंगे, राइट. तो बेसिकली मान लेते हैं कि अगर मेरा पिवट इंडेक्स ये होता, राइट, अगर मेरा पिवट इंडेक्स ये होता तो मैं क्या कर सकता था इस टाइम पे जब पिवट इंडेक्स मेरा लेफ्ट ये है तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट सम कैलकुलेट कर लूँगा. लेफ्ट सम इनिशियली 0 होगा और यहाँ इनिशियली मैं देखूँगा कि क्या मैं 0 से इस इंडेक्स तक जा सकता हूँ. बेसिकली नहीं जा सकता, तो लेफ्ट सम मेरा 0 ही होगा. और राइट सम मेरा क्या होगा, मैं चाहूँगा कि पिवट इंडेक्स करंट पिवट इंडेक्स +1 से सारे एलिमेंट का सम करूँगा और देखूँगा कि क्या वो लेफ्ट सम के बराबर है कि नहीं. फिर मैं ऐसा 1 के लिए करूँगा, 2 के लिए करूँगा, 3 के लिए करूँगा. 2 के लिए कैसे करेंगे, 2 के लिए ऐसा करेंगे कि बेसिकली लेफ्ट सम हमारा 0 से 1 तक जाएगा और राइट सम हमारा 3 से लेकर एंड तक जाएगा. सो दिस इज वन अप्रोच दैट कम्स टू माइंड विच इज क्वाइट ब्रूट फोर्स इन नेचर एंड वी आर नॉट गोना कोट दिस, वी आर जस्ट गोना, इसलिए मैं बस को एक बार डिस्कस किया. मैं एक बार क्या करता हूँ कि मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे को, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसको हम और अच्छे वे में सॉल्व कर सकते हैं. द अप्रोच दैट वी जस्ट डिस्कस राइट नाउ टेक्स अबाउट big O of n square time. It is a very bad time complexity and we should always try to solve it in maybe linear or maybe n log n inverse case, right. So let's discuss this कि हम कर क्या रहे हैं, right. तो पिवट इंडेक्स के लिए हमें पता है कि अगर ये मेरा पिवट इंडेक्स होता, ये मेरा पिवट इंडेक्स होता, इस केस में मेरे पास लेफ्ट सम
ओके गाइस, अगर ये मेरा पिवट इंडेक्स होता तो इस केस में मुझे पता था कि मेरा लेफ्ट सम यहाँ पे 0 होना चाहिए था और मेरा राइट सम यहाँ पे क्या होना चाहिए था, राइट सम मेरा होना चाहिए था बेसिकली a ऑफ 1, a ऑफ 2 प्लस a ऑफ 3 प्लस a ऑफ 4 प्लस a ऑफ 5, राइट। और अगर मेरा पिवट इंडेक्स ये होता तो इस केस में मेरा लेफ्ट सम क्या होता, इसमें मेरा लेफ्ट सम होता बेसिकली a ऑफ 0, राइट। हमें बस ये चेक करना था कि क्या ये इसके बराबर होता है कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट। वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेनस्टॉर्म सम इंट्यूशन हियर। और इस केस में मेरा राइट सम क्या होता है, मेरा राइट सम बेसिकली होता है a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4 एंड a ऑफ 5। अगर मेरा पिवट इंडेक्स ये होता तो इसमें मेरा लेफ्ट सम क्या होता है, इसमें मेरा लेफ्ट सम होता बेसिकली a ऑफ 0 प्लस a ऑफ 1, a ऑफ 1 सॉरी। और यहाँ पे मेरा राइट सम क्या होता है, मेरा राइट सम होता बेसिकली a ऑफ 3 प्लस a ऑफ 4 प्लस a ऑफ 5, राइट। तो हम इसको बेसिकली चेक करते हैं कि ऐसा कुछ होता, बेसिकली ये हम कर रहे हैं ना हर स्टेप पे। फिर हम देखते हैं कि लेफ्ट सम हमारा इस केस में क्या होता, लेफ्ट सम हमारा इस केस में होता a ऑफ 0, a ऑफ 1, अगर पिवट इंडेक्स मेरा ये होता a ऑफ 2 एंड देन यहाँ पे मेरा होता a ऑफ 4 प्लस a ऑफ 5 और यहाँ पे सारे प्लस हो जाएंगे। फिर हम देखते कि क्या ये बराबर होता, तो फिर वी वुड हैव रिटर्न्ड इट, राइट। तो अगर देखो ना तो हो क्या रहा है ना, हर स्टेप पे बेसिकली वी आर इफ वी गो फ्रॉम लाइक व्हाट वी आर डूइंग, बेसिकली हम यहाँ से लेके एंड तक जाते रह रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि यार फर्स्ट इटरेशन के बाद लेफ्ट सम पे मेरा ये वाला सम भर गया और राइट सम में मेरा बेसिकली एक घटता जा रहा है, राइट। दिस इज व्हाट वी कैन थिंक अबाउट इट, एंड इफ यू थिंक अबाउट इट केयरफुली दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू इन वन इटरेशन, राइट। कि हमारे पास बेसिकली राइट सम होता है, हमारे पास कोई दिया होता तो फर्स्ट इटरेशन के बाद हम राइट सम में से ये वाला एलिमेंट डिलीट कर देते और लेफ्ट सम में जैसे हमारा फर्स्ट इटरेशन खत्म होता, सॉरी जब हमारा इटरेशन स्टार्ट होता तो हम राइट सम से बेसिकली ये चेक कर लेते कि हे भाई इस सम से ये वाला हटा दे और ये देख कि ये हटाने के बाद लेफ्ट सम बराबर है कि नहीं, है ना। और फिर हम अपने राइट सम को वैसे ही रिड्यूस भी कर देते। फिर हम इस एलिमेंट पे देखते हैं कि राइट सम उसमें से ये वाला इंडेक्स का हटा दे और लेफ्ट सम पे ये वाला इंडेक्स ऐड कर देते, फिर देखते कि ये बराबर है कि नहीं। सो बेसिकली इट लुक्स लाइक वी कैन डू इट इन वन इटरेशन ऑल्सो, राइट। सो नाउ वी विल डू दैट। सो मेरे को इसको एक बार लिखने दे दो, आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर। ओके, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर नीचे कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अपने को बेसिकली पहली बार में अपन एक बार सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं सम कैलकुलेट कर लूँ तो सम विल बी इक्वल टू 1 + 7 8 8 3 11, मतलब अपना एक इंडेक्स चलेगा यहाँ से, फिर हम सम इनिशियली 0 होगा, ये हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हमारा सम 1 हो जाएगा, फिर हमारा आई इधर बढ़ेगा, फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो सम हमारा हो जाएगा 8, फिर हमारा आई इधर बढ़ेगा, फिर हम देखेंगे हमारा सम हो गया 11, फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, फिर हम देखेंगे कि 6, तो हमारा सम हो जाएगा 17 और ये आई आगे बढ़ जाएगा, 17 + 5 22, राइट। और ये हमारा आगे बढ़ जाएगा, फिर हम यहाँ पे देखेंगे 28 हो गया हमारा सम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नो, ओके। एंड देन आई विल जस्ट रिमूव दिस और इसके बाद हमने देखा कि हमारा सम हो चुका है 28 और एक इनिशियली हम देखेंगे कि लेफ्ट सम यू स्टे 0, okay, and then let me remove this also, so these indexes are not useful to me anymore, okay। Now again I'll start from here, ठीक है, यहाँ से, okay। so यहाँ पे अपने को ये देखना है कि at this point of time whether this sum is equal to left sum or not, first thing। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जब हमारा I 0 है, all we have to check is whether left sum is equal to sum माइनस एरे ऑफ आई, राइट। लेफ्ट सम हमारा क्या हो जाता, 0 होता और सम माइनस एरे ऑफ आई क्या होता, 28 - 1 27, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 27, राइट, एट दिस पॉइंट। तो बेसिकली हमारा ये इक्वेशन बेकार हो गया और फिर हम लेफ्ट सम से क्या करेंगे, इस वाले सम को रिमूव कर देंगे। तो हमारा लेफ्ट सम क्या हो जाएगा, सॉरी राइट सम से बेसिकली फिर हम इस वाले वैल्यू को डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास आ गया 27 और लेफ्ट सम में हम इस वैल्यू को ऐड कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट इंडेक्स के लिए ये वाला सम हमें चाहिए। तो लेफ्ट सम हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब आई हमारा यहाँ पे आया, हमने देखा कि हमारे पास 7 है, तो बेसिकली 20 - 7 20 = 1 नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 20 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा।
ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो हम देखेंगे अब 3 है हमारा, तो 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 इज नॉट द केस। तो बेसिकली हमारे हमें अभी भी नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको 11 कर देंगे और इसको बेसिकली 17 कर देंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखना कि जो इंडेक्स थी 0, 1, 2 और 3, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सम है ना, सम माइनस दिस एलिमेंट, राइट, दिस वाज लाइक द राइट सम, राइट, ये वाला सम हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो अगर इस केस में हमें राइट सम कैलकुलेट करना है तो राइट सम विल बी बेसिकली 17 माइनस द करेंट नंबर, राइट, तभी तो हमें यहाँ से राइट सम मिलेगा। और इससे पहले वाले सारे लेफ्ट सम हम कैलकुलेट करते आए। तो होगा क्या कि हम देखेंगे 17 माइनस 6 विच इज 11 इज इक्वल टू लेफ्ट सम, इट इज, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, राइट। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस। और बेसिकली होगा क्या, और जब हम अपना पूरा लूप अपना कभी भी हमें नहीं मिलेगा, है ना, तो अगर हमें कभी भी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एंड में -1 रिटर्न कर देंगे, विच इज व्हाट द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, राइट। सो एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस, बेसिकली हमने बेसिकली एक सम कैलकुलेट किया, तो हमारा बिग ऑफ n लगा उसमें, फिर हमने एक पूरा एंड टू एंड किया एरे के स्टार्ट से लेके एंड तक, तो इसमें भी हमारा बिग ऑफ n लगा। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर हो गई और हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं यूज किया अदर देन फ्यू वेरिएबल्स हियर एंड देयर, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो बी लीनियर। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। ये अप्रोच काफ़ी इसको प्रीफिक्स सम भी बोलते हैं, राइट। प्रीफिक्स सम इज बेसिकली इफ़ यू आर एट एलिमेंट i, तो प्रीफिक्स सम होता है कि आप इस यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स का सम लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे अगर i यहाँ पे बैठा है तो प्रीफिक्स सम आपका हो जाएगा 1 7 8 3 11 6 7 8, राइट। सो दिस इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू प्रीफिक्स सम, बट द आइडिया बिहाइंड इट, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट वाज क्वाइट सिमिलर, कि हम एक ट्रैकिंग सम सॉर्ट ऑफ लेके जा रहे थे लेफ्ट सम के लिए। Okay, so this is it for this video guys. Just remember this is also called as a prefix sum, right? Prefix sum at element I, at index I कोई बोलता है तो basically आपको बोलना है कि it will 1 7 8 3 11 6 7 8. Okay, so I hope you like this video. I'll see you in the next one जिसमें हम इस वीडियो को कोड कर देंगे और ये सारे नोट्स में डिस्कॉर्ड सर्वर पे अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए। थैंक यू, आई एम सुपर। Bye guys.